Hi, good evening. This is Learn with JD, and today I have come with good problems based on area under curves or the application of integration. Okay, so this is a normal J level problem, and I've taken one J mains 2025. This is 2025 का एक problem है ये. So I'm doing it in a little different approach. When I'm solving the integral, I'll be doing it in a different approach. So that is the only highlight of this problem. So let us go into this problem. Find the area enclosed between the smaller arc of this circle and this parabola. So देखने के बाद समझ में आता है कि ये बड़ा सर्कल है यार. ये इसका origin, इसका center origin में नहीं है. It's somewhere else. And so as with this parabola, it's somewhere else. अभी if you take the coordinate system, okay, the circle might be here and the parabola might be somewhere here, and फिर इसका area निकालना है. And you have to find the intersection point of both. It's going to be a little hectic if you solve it as it is. तो इसीलिए हम solve कर सकते हैं, उसमें ऐसे कोई problem नहीं है. We definitely can solve it that way, but I will do it by translation of origin. तो थोड़ा एक रिविजन करते हैं हम ट्रांसलेशन ऑफ ऑरिजिन का. So this is the normal initial origin, initial coordinate system, and the initial origin is this, ये वाला, this point, this yellow point is the initial origin. Okay, now suppose I want to translate it to a new place. Okay, let us translate it to a new place, h comma k. So अभी का new origin, and this coordinate axis is capital Y capital X, and ये जो coordinate system है ये है h comma k. So this coordinate h comma k is with respect to the white axis, the original one. Okay, and if I ask कि green axis पे बैठ के if I ask इसका और इस point का coordinate क्या है, 0,0, because उसके लिए तो origin है. Okay, वैसा. And I am taking a point, let it be P, and x comma y. So ये जो x comma y, now you'll ask me a question, sir ये x comma y with respect to which axis, the white one or the green one? But मैंने छोटा axis यूज़ किया, मीन्स छोटा letter यूज़ किया, मतलब छोटे axis के origin के respect से. Okay, so let us drop the perpendiculars from this to the axes, respective axis. थोड़ा इसको properly arrange करते हैं. Okay, this is the point. So you can say that कि this distance is going to be capital X, obviously. इसका coordinate small x है with respect to this origin. If I drop a perpendicular, then this distance has to be x, and obviously this distance has to be y. Okay, इसमें कोई confusion नहीं है. Now, obviously when I'm converting this point to the new coordinate system, this point capital X and capital Y will be with respect to this origin. ये नया origin, नया system of axes, that is a green system of axes. So again we have already dropped the perpendicular. Now if I ask what is this distance, what is this distance, so you will say, sir इस point इस origin के कितने distance से उतना distance होगा, and that is your capital X. And ये कितना होगा, normally ये होना चाहिए capital Y, because this point is with respect to this origin. So if I drop a perpendicular, obviously it has to be capital X from that particular origin and capital Y from that particular origin. Okay. Now ये distance, I think you can see that it is h, because this coordinate is with respect to this origin. So ये distance h है. So can you see a relation between small x, capital X? That is the formula for our translation also. मैं
थोड़ा इसको, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच. कैन यू सी दैट? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच. तो x माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल एक्स. दिस इज द ट्रांसलेशन फॉर्मूला नहीं बोल सकते, जस्ट लॉजिक है ये याद भी नहीं कर सकता. अपने आप जब प्रैक्टिस हो जाता है ना तो याद हो जाता है. सो दिस आई राइट इट एज ओल्ड माइनस ओरिजिन इज इक्वल टू न्यू. ओल्ड माइनस ओरिजिन इज इक्वल टू न्यू. सो दिस इज द ओल्ड कोऑर्डिनेट, this is the old coordinate, this is the origin का coordinate, and this is the new coordinate, that is your capital X capital Y. Okay. This is the system. So now if I am going into this problem, suppose I have circle का equation लेते हैं, x square plus y square minus 2x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. तो ऐसे क्वेश्चन शायद तुम लोग ने कॉनिक सेक्शंस में भी किया होगा कि फाइंड द सेंटर एंड तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड द सेंटर एंड रेडियस इधर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. इसका फॉर्मूलाज भी होता है जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है. एंड जो प्रूफ के लिए हम यूज़ करते हैं वी एक्चुअली डिड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो एक बार वैसे ही हम इधर भी करेंगे. तो इफ़ आई से दिस, इफ़ आई जस्ट let us filter the x terms and y terms together. X square minus 2x plus y square 4y and minus 11 is equal to 0. अभी सर्कल का ही चल रहा है. तो ये सोचो कि इसको क्या ऐड करना पड़ेगा. If I add 1 it will be a perfect square. How did I find it? Completing the square method आता है ना. तो I divide by 2. The middle term को I divide by 2. एंड वन का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इधर. सेम हियर, इसका मिडिल टर्म क्या है? 2. सो आई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 का स्क्वायर. नाउ इफ यू सी दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया. एंड ये क्या है? ये हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर. ठीक. अभी देख रिमेनिंग माइनस, सब माइनस है, ऐड कर लो. -1 -4 -5 -5 -11 -16. तो ये -16 इज इक्वल टू 0 हो गया. अब ये -16 को इस तरफ लेके जा सकते हो. ओके, सो यू गेट अ पॉजिटिव 16. This is the area of this. This is the equation of the particular circle. अब directly you can see इसका center 1 है, 1 -2 and इसका radius होगा 4. It is in that standard general form of an circle. So this you can even draw the circle's equation also and get it. But wait, thumb. पैराबोला का इक्वेशन देखते हैं वो क्या मिलता है. पैराबोला का पहले, अभी पैराबोला का करते हैं. सर्कल हो गया, पैराबोला करते हैं. पैराबोला का इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2√3. नाउ व्हाई एम आई डूइंग दिस? आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाई एम आई डूइंग बाय ट्रांसलेशन. दैट इज आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट. सो let us see if we can complete the square for this. इसका complete the square क्या होगा? इसका complete the square होगा सेम, इसका ऑलमोस्ट सिमिलर ही था जो अभी मिला. तो इसका मिडिल टर्म क्या है? 2 का आधा 1 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लो. बट आई विल पुट -1 + 1 हियर दिस टाइम. -1 आई विल क्लब इट विद द कंप्लीट द स्क्वायर. क्यों? क्योंकि इसमें मैं नेगेटिव कॉमन लेके ऐसे आएगा, x² - 2x + 1 आएगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. और ये 1 + 1 इसके साथ जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके.
So what do you get? Y is equal to this whole thing will be minus of x minus 1 whole square plus 1 plus 1 2 minus 2 root 3. तो ये पैराबोला का इक्वेशन मिल गया. ओके, एंड ये सर्कल का भी मिल गया. ओके, सो दिस इज द पैराबोला का इक्वेशन एंड दिस इज द सर्कल का इक्वेशन. अब देखो व्हाट इज कॉमन. लेट अस सी एक्स कोऑर्डिनेट कॉमन है. देख, मतलब यहाँ पे एक्स इज माइनस 1 एंड हियर ऑल्सो एक्स माइनस 1, बट यहाँ पे y प्लस 2 है, यहाँ पे y प्लस 2 नहीं है, डायरेक्टली y दिखा है. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये सब जो है वो छोड़ दो, ये वैल्यू सब वो भी ज़रूरत नहीं है. बस आई एम जस्ट कीपिंग द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटैक्ट. ओके, बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूँ, बस एक पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब. नाउ माई क्वेश्चन इज कि आई एम हैविंग अ सर्कल हियर. कहाँ पे पता है? यहाँ पे वो नए एक्सिस के सेंटर में आई हैव केप्ट अ सर्कल देन. ओके, सो इफ आई सी इसका इक्वेशन क्या है, तो यू विल से सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम आर स्क्वायर आएगा. सर चलेगा, आएगा तो आएगा ही. क्यों? क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ये सर्कल का सेंटर एग्जैक्टली इस एक्सिस के ऑरिजिन से कोइंसाइड हो गया, इसलिए डायरेक्टली उसका इक्वेशन कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बन गया. और उसका एरिया निकाल सकते हो क्योंकि रेडियस डायरेक्टली पता है, वो सब जो भी है. नाउ इफ आई हैव अ पैराबोला ऑल्सो लाइक दिस, ऐसे कुछ, तो इसका एरिया ईजिली निकाल सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू द ग्रीन एक्सिस, बिकॉज उसका एरिया, उसका पैराबोला का जो इक्वेशन है वो बहुत सिंप्लीफाई हो गया. आई विल शो यू दैट. It will really simplify a lot. But if you are keeping this circle here itself and you are doing it with respect to the white axis, then equation भी बहुत बड़ा आएगा. लेकिन बहुत सारे अभी क्वेश्चंस में ऐसा होगा tangent to this equation, और tangent का equation भी बहुत गंदा आएगा. सोचो. So whenever there is a possibility, whenever there is even a slightest possibility that दोनों curve को I can translate it to a particular place such that the equation is very simplified and मेरा जो इंटीग्रल है वो बहुत आसान हो जाएगा फिर एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए, इसलिए हम ये कर लेते हैं. अब देख इसका इक्वेशन क्या ये अभी विथ रेस्पेक्ट टू दिस द इक्वेशन विल बी लाइक दिस, ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ऐसे आएगा. नाउ यू हैव टू सेपरेट y, ऐसे नहीं, व्हेन यू लीव द x कोऑर्डिनेट इन द पर्टिकुलर स्ट्रिप, we'll have to separate the y, which is very hard. तो इसीलिए हम हमेशा whenever there is the slightest possibility हम दोनों को सेम ओरिजिन में शिफ्ट करते हैं ताकि थोड़ा काम आसान रहे. अब देख यहाँ पे, देख यहाँ पे ये और ये कॉमन हो गया, मतलब ये तो पक्का है. आई विल शिफ्ट माई ओरिजिन टू x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1. अभी यहाँ पे k इज इक्वल टू वॉट? अभी देख, रिमेंबर x माइनस के h इज इक्वल टू द न्यू ऑरिजिन. नाउ y माइनस k इज इक्वल टू द न्यू y कोऑर्डिनेट. बट यहाँ पे y प्लस 2 है, मतलब इसका मीनिंग है y माइनस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y. सो योर k इज नॉट 2, इट इज माइनस 2. ओके, इसलिए मैंने माइनस 2. बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें तो माइनस 2 नहीं है, चलेगा ना. यू ऐड प्लस 2 टू बोथ साइड्स, इट्स नॉट अ बिग डील. नाउ यू गॉट y प्लस 2 देयर, यू गेटिंग. सो लेट अस नाउ डू दिस एज इंस्ट्रक्टेड.
लेट अस टेक इट। ये दोनों सेम टाइम पे कॉपी करने की कोशिश में हूँ मैं, देखते आएगा कि नहीं, ताकि तुम लोग को थोड़ा इजी हो जाए। अरे वाह, आगे। अब नाउ इस इक्वेशन को क्या करना है? एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पेज, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा? y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये 2 प्लस 2 क्या हो गया? ये 2 प्लस 2 हो गया 4 माइनस प्लस 4 माइनस 2 रूट 3। ये एक पैराबोला और ये एक सर्कल। नाउ सी, बोथ ऑफ देम हैव अ वेरी कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम। So let us try to draw this particular figure. दोनों को join करते हैं. So where will I keep my new coordinate system का origin? I will keep it at 1, minus 2. So as I told you now, that is the case. X minus 1 will be capital X. Y minus of minus 2 will be capital Y. So this is my new origin. Okay, I'm shifting to this origin. तो ये कौन सा इक्वेशन बनेगा? अभी देखना, ये इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? देख, ये पूरा y बनेगा, ये पूरा x, y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये जो कांस्टेंट है, तो y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये जो कांस्टेंट है 4 माइनस 2 रूट 3। दिस इज सो सिंपल, जस्ट सी, इट्स सो सिंपल, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और ये देख कितना गंदा हो गया। एंड दिस इज द रीजन वी डू ट्रांसलेशन। सम अदर पॉइंट, कॉमन पॉइंट। अब आई विल सी कि इन दोनों का कॉमन एरिया निकालना है। स्मॉलर एरिया, राइट? स्मॉलर आर्क। ओके, लेट अस सी। अभी सॉल्व करते, देखते हैं कि हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। ओके, सो नाउ आई विल ड्रॉ द कैपिटल X, कैपिटल Y। नाउ यू विल बी आस्किंग, सर एरिया चेंज नहीं होगा ट्रांसलेशन? नहीं। अरे एरिया कैसे चेंज होगा? तुम ही बताओ। सर्कल तो यही है, सर्कल का एरिया तो यही है। तुम यहाँ से नापो या यहाँ बैठ के नापो, एरिया तो वही रहेगा। सो योर एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिन। इवन इफ यू रोटेट द ओरिजिन ऑल्सो, एरिया इज गोइंग टू बी द सेम। जस्ट इमेजिन दैट। ट्रांसलेशन तो दूर की बात है, डेफिनेटली इट विल। ओके, सो लेट अस ट्राई टू फर्स्ट प्लॉट दिस एरिया। ये वाला, इसका एरिया निकालते हैं। ओके, so it's a circle of 16. You can imagine it as 4 square. So it's a circle with center at the origin and radius 4. That's it. Okay. ये हो गया। नाउ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यू नो कि ये है y इज इक्वल टू, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देयर इज अ कांस्टेंट। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस दैट वी नीड टू फाइंड। ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे जाएगा। सो लेट अस सी ये वाला क्या है टर्म। तो यू नो दैट रूट 3 इज 1.732। तो ये 2 इंटू 1.732 विल बी 1.7 ले लो, 3.4 समथिंग ले लो। 4 माइनस 3.4 स्लाइटली पॉजिटिव वैल्यू 0.6 ऐसे कुछ। तो दिस विल बी योर पैराबोला। दिस विल बी योर पैराबोला। ओके,
Now what is this coordinate system? This coordinate is 4, 0 because radius is 4 and ये coordinate क्या होगा -4, 0. ठीक है. अब I need what? I need the area enclosed between the smaller arc of the circle, this and the parabola. Smaller arc. The smaller arc कौन है? Which is the smaller arc? This is a bigger arc. This is a smaller arc. तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए. बट डोंट यू थिंक ये पैराबोला सिंस इट इज़ उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है तो ये सिमेट्रिकल एरिया हो गया ये दोनों. तो बेसिकली आई नीड टू फाइंड दिस एरिया एंड देन टेक इट इनटू 2 टाइम्स. दैट्स इट. हो जाएगा. फॉर दैट आई नीड टू फाइंड व्हाट द इंटरसेक्शन पॉइंट. कहाँ तक जाएगा समझ में आना चाहिए. तो पहले अभी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं. ओके. तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन do hit and trial method. Most of the times it will work. In JEE mains के most of the questions hit and trial से काम बन जाता है actually. बनना भी चाहिए actually. ठीक है. तो अभी 4 के इस साइड इस पार कितने इंटीजर्स है 1 2 3 है. तो 3 इस पैराबोला में भी डाल दो और इसमें भी डाल दो. दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए. तो अभी x इज इक्वल टू 3 डाल रहा हूँ मैं. x इज इक्वल टू 3. 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आएगा. y इज इक्वल टू प्लस और माइनस √7. तो यहाँ पे भी √7 चाहिए. होगा नहीं, √7 आएगा नहीं क्योंकि √3 भी है. सोचो तो छोड़ो 3 नहीं है 2 डालते हैं. 2 स्क्वायर 4 प्लस हाँ ये मुझे लग रहा है. ओके. So 2 square plus y square is equal to 16. तो y square is equal to 16 minus 4 12 है. तो y is equal to √12 जो मेरा 2√3 है. तो यहाँ पे भी एक 2√3 आ रहा है. तो एक मेरा गेस है. अभी देख नाउ सिंस दिस y कोऑर्डिनेट इज डाउन. देख y कोऑर्डिनेट डाउन है तो हम नेगेटिव लेंगे इसका. प्लस और माइनस तो आता ही आता है. तो आई विल टेक द नेगेटिव वैल्यू. ओके. द नेगेटिव 2√3. अब देख यहाँ पे भी नेगेटिव 2√3 आ रहा है कि नहीं. y इज इक्वल टू यहाँ पे -4 + 4 - 2√3. देख -2√3 आ गया. दोनों का y कोऑर्डिनेट बराबर फॉर द सेम x कोऑर्डिनेट. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया. सो ये पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू. ओके. अब इसका एरिया निकालना है. तो आई विल हैव टू आई एम जस्ट फाइंडिंग दिस एरिया माइंड यू जस्ट दिस एरिया एंड आई विल डबल दिस फॉर श्योर. So इसके लिए I will find the strip. I'll take a vertical strip. Of course I'll take a vertical strip. तो vertical strip के लिए इसका y coordinate minus इसका y coordinate. Y coordinate of the parabola minus the y coordinate of the circle. So the required area will be. The required area will be 2 times the y of parabola minus y of circle. इतना तो क्लियर है. नाउ x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 से. देख x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक लेना पड़ेगा. तो 0 से दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर बेसिकली. ओके. बेसिकली इंटीग्रल सॉल्व करना है. अभी y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला निकालना है. y coordinate of parabola डायरेक्टली दिया है. दिस इज योर y coordinate of parabola डायरेक्ट. नाउ इसका y coordinate निकालना है सर्कल का. तो सर्कल का y coordinate निकालते वक्त यू विल गेट लाइक दिस. यू विल गेट अ रूट टर्म. y इज इक्वल टू प्लस और माइनस √16 माइनस वाई स्क्वायर. बट अंडरस्टैंड जब ये पूरा ये जो रीजन है बिकॉज दिस इज द पोर्शन यू नीड टू फाइंड राइट. तो ये जो इसके सर्कल वाला पोर्शन इफ यू ऑब्जर्व सारे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. सारे y कोऑर्डिनेट बिलो द x एक्सिस है नेगेटिव. तो आई विल टेक द नेगेटिव पोर्शन. दिस इज योर y कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल एंड दिस इज डायरेक्टली द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला. सही. ओके. एंड नाउ आई विल जस्ट कट शॉर्ट दिस x एक्सिस क्योंकि अभी तो हमें बहुत कुछ बाकी है. ओके. तो यहाँ पे इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई हैव टू फाइंड
2 times this area. So I'll just do one thing. I'll just write the integral. Parabola का y coordinate is minus. Now I'll write it small x square. Capital X square बहुत हो गया. Minus x square plus 4 minus 2 root 3 minus of the y coordinate of circle. तो minus of minus plus हो जाएगा ना, इसलिए plus root of 16 minus x square dx. Till here हमने सब्स्टिट्यूट किया y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला और y कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल को सब्स्टिट्यूट कर दिया. अभी नेक्स्ट पेज में आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस इन अ बेटर वे. ओके, अभी can I split it? I'll split it into two integrals, this and this. Okay, so let us split it into two integrals. और ये 2 बाहर रहने दो, ये 2 बाहर रहने दो. नाउ इसका इंटीग्रल वेरी वेरी इजी है. इसका इंटीग्रल है अभी माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इसमें कोई साइंस नहीं है. 4 minus 2 root 3 is a constant, so into x. Okay, and 0 and 2. Okay, plus obviously this integral you will have to find. I am writing this as I1. तो इसका वैल्यू क्या है बता, इसका वैल्यू क्या आया बताओ बताओ बताओ. 0 का कोई यूज़ ही नहीं है. ओके, लोअर लिमिट पूरा 0 ही बना देगा इसको, तो टेंशन नहीं है. बस 2 डाल दो पहले. सो 2 डाल दो. 2 क्यूब माइनस 8/3 प्लस 4 minus 2 root 3 into 2. I1 I will solve it, don't worry. तो 2 into so 2 into 4 8 आ गया. 8 minus 8/3 you will get 16/3. तो 16/3 आ गया minus 4 root 3 plus. So this is the maximum you got after solving these integrals. Now इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है, आई थिंक यस एवरीवन माइट बी थिंकिंग कि भाई ये रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका एक इंटीग्रल है. डेफिनेटली इसका एक इंटीग्रल है, वैल्यू है. क्या है वो? x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a. वो भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. नो वट, यस यू कैन. एंड अदरवाइज यू कैन अप्लाई x इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, और वो इस सब्स्टिट्यूशन डाल के वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, बट आई वांट टू डू इट लिटिल डिफरेंट. इस इंटीग्रल को मैं डिफरेंटली करना चाह रहा हूँ. Just imagine this. This is your y coordinate, na? Y is this. So y, it is saying that y is root of 16 minus x square. Even if I square it, what is it? ये किसका इक्वेशन आ जाएगा? इसका सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा. सो am I saying that this is a circle? No, it's not a circle. Why it's not a circle? सोचो, why it is not a circle? ये प्लस है, माइनस नहीं है. समझ रहे हो? यहाँ पे हमने जब स्क्वायर रूट लिया था तो प्लस और माइनस आया था, isn't it? तो सर्कल है, सर्कल नहीं है, ये प्लस था. मतलब इट्स जस्ट द टॉप मोस्ट, द ऊपर वाला सेक्शन ऑफ द सर्कल. दैट्स इट. इट्स अ सेमी सर्कल जिसका रेडियस क्या है? 4,0 एंड -4,0. ओके,
Now they are asking I want to find the area between x coordinate 0 to 2. तो 0 इधर है और 2 इधर है. This region. So they are asking this area. That if you can see, I can find this triangle का area plus this sector का area. ये sector है. अब ये triangle का area कैसे सोचो? Put x is equal to 2. Put x is equal to 2 in this equation. क्या मिल रहा है बताओ? Put x is equal to 2 in this equation. Tell me what you're getting. Y. Root of 16 minus 2 square 4. Root of 12. So you're getting a 2 root 3. Do you agree? And ये जो distance है वो 2 है. तो area of the triangle तो आ गया. Half into 2 into 2 root 3. So that answer is 2 root 3. अभी ये पूरा area हो गया, मिल गया. Now if you see this angle tan theta, ये जो angle है trigonometry basic 9 standard है. tan theta क्या मिलेगा बताओ? 2 root 3 by 2 root 3. मतलब ये एंगल क्या है 60. ये एंगल 60 है, टोटल तो 90 है, तो ये एंगल कौन कितना होगा 30. यू गेटिंग? सी फ्रॉम दिस ट्राइंगल व्हाट डिड आई डू इज आई टुक दिस थीटा, I took tan theta in this right angle triangle and I wrote it as opposite by adjacent. तो रूट 3 आया. रूट 3 मतलब ये एंगल क्या है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री. तो ये 30 डिग्री है. 30 डिग्री मतलब रेडियन में पाई बाई 6. नो एरिया ऑफ ए सेक्टर एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा रेडियंस में होना चाहिए, है कि नहीं? सो व्हाट इज दैट एरिया देन? हाफ ऑफ आर स्क्वायर. आर रेडियस इज तो एनीवे स्टिल 4 ओनली, तो 4 स्क्वायर इंटू पाई बाई 6. So this is the area this much. And ये तो ये triangle का area है, दोनों जोड़ो मिल जाएगा आंसर. So what is the final answer for that integral, for this integral I? I is equal to 2 root 3 plus ये कितना आ रहा है 16 8 4 3 4 pi by 3 4 pi by 3. This is the integral value. Smartest method. And I have seen most of the JEE mains question 99.9% they'll give you values जहाँ पे तुम ये concept apply कर सकते हो हमेशा in one way or the other. Okay, so you don't need to do that big formula and substitute. क्यों करना है? Time is क्या? Time is what? Rank. Time is rank. ये सोच रहे. तो अभी ये इंटीग्रल I का वैल्यू मिल गया. ओके, तो इसमें डाल दो. This is your answer. आंसर मिल गया. इतना ही था. ओके, सो आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू दिस क्वेश्चन. एंड यू कैन देन सिंप्लीफाई इट एंड सॉल्व इट. अपने हिसाब से कर लेना. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. द मेन कॉन्सेप्ट है कि हम शिफ्ट करना चाहिए. ओके, एंड ये जो रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने कैसे दूसरे टाइप ऑफ मेथड से किया वो जान लेना पहले. okay, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं. सो दैट आई विल टेल यू इन डिफरेंट वीडियोस. दैट इज ऑल. ओके, तो ये बहुत बड़ा वीडियो बनाया अभी. सो आई विल डू वन थिंग. ये प्रॉब्लम है ना, तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना. 2025 JEE मेंस है विदाउट यूजिंग दिस इंटीग्रल. विदाउट अभी ये जो इंटीग्रल है इसका सोल्यूशन जैसे ये भी वापस ये इंटीग्रल इसमें भी आएगा. बट थिंक हाउ कैन आई स्मार्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट दैट इंटीग्रल. जैसे मैंने अभी किया ना वैसे ट्राई करना एक बार. ओके, विद इन 1 or 2 days आई एम गोइंग टू जस्ट पोस्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर मेथड, जहाँ पे इंटीग्रल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Okay, and then if you guys are not watching it soon as possible, then it will be there in my playlist for area under curves. Yeah. Okay, thank you. Wassalamu.